हिंदू सलाम साथियों, मेरा नाम राहुल कुमार है। क्या लोग हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। India, that is Bharat, is not merely just a nation. It is a theater of power, politics, and perceptions. And to understand this India, we begin with democracy. A parliament, a prime minister, his cabinet, all of it bound by the mandate of the people. This is India, where the power rises from the people, of the people, and for the people. Now, this idea of India does not rest merely at the nation's borders. It breathes here at Hindu College. Hindu College is a constituent college of the University of Delhi, established in the year 1899 by Pandit Krishan Das Ji Guruvale. The college is one of the first of its kind to promote nationalist education amongst the youth, while also maintaining to be non-sectarian and non-elitist. Over the 127 years of Hindu College, it has produced some of the brightest minds of our country, ranging in various streams of excellence, from power, politics, arts, commerce, and sciences. Now, one of the things that makes Hindu College very special is its student parliament. Established in the year 1935, this parliament dates much older than the national parliament of our own country. The student parliament encourages larger socio-political participation of students across the campus. The student parliament also functions as a discussion forum to talk about academics, events, and societies. Every year, the students of this college elect their prime minister, who then goes ahead and appoints his cabinet of ministers and secretaries who look after the affairs of the college for the coming academic year. हिंदू सलाम साथियों, मैं समीर कुमार उपाध्याय हिंदू कॉलेज के संस्कृत डिपार्टमेंट से थर्ड ईयर स्टूडेंट। दोस्तों, मैं आने वाले पीएम इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहा हूँ। हिंदू सलाम साथियों, मेरा नाम रोज केसरवानी है। मैं हिंदू महाविद्यालय समाजशास्त्र विभाग द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने अपने सीसी पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूँ। हिंदू सलाम साथियों, मैं रक्षिता आप सबके सामने हिस्ट्री ऑनर्स सेकेंड ईयर, मैं सीसी के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। हिंदू सलाम साथियों, मेरा नाम आर्यन बेसोया है। मैं सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और इस साल आने वाले हिंदू इलेक्शंस में मैं सेंट्रल काउंसिलर पद के लिए खड़ा हो रहा हूँ। दोस्तों, मेरा लक्ष्य हिंदू कॉलेज की पार्लियामेंट की लेगेसी को वापस से वहाँ एस्टैब्लिश करना और हिंदू के लोकतंत्र की रक्षा और आप सबकी सुरक्षा है। बस मैं एक ही चीज़ आप सबसे मांगूंगी और चाहती हूँ कि हिंदू कॉलेज का नाम रोशन हो और उसका नाम रोशन करने में एक मैं भी एज अ भागीदारी रहूँ। और चाहती हूँ कि आप सब वोट देने आइए। आने वाली 18 तारीख को हिंदू कॉलेज में इलेक्शंस हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी वोट देने आएँ और डिजर्विंग कैंडिडेट को बनाएं। नमस्कार। Initially, there was one more team contesting in this election. Team Kartavya, led by Yash Sen, a fourth-year student of the Department of History. But a series of unfortunate events unfolded, because of which, ultimately, Yash Sen withdrew his candidature.
चोखा को दाल बाटी से बेहतर बताने की कोशिश की थी। जो मक्का के नाम पर राजनीति कर रहे थे वो आज कहते हैं कि हम एकता के साथ हैं। हम आज किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ और छात्र को। सभी क्षेत्रों की समावेशिता के साथ आपके सामने प्रस्तुत है टीम कर्तव्य। छात्र क्या, छात्राओं की तो और भी बुरी स्थिति है। छात्राएं राजनीति में दिखती नहीं है। आप इस भीड़ में देख लीजिए, इस सामने या किसी भीड़ में देखिए, छात्राएं गर्ल्स राजनीति में है ही नहीं। मैं आज इन्हीं सीढ़ियों पर खड़े होकर जहाँ से लोग क्षेत्रवाद का गर्व और हम पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, उनके सामने आपके सामने एक वादा करता हूं, महिलाओं के लिए रिजर्व करूंगा। Now, after this clash between both the teams, a series of regrettable events unfolded. It was alleged that Samir Kumar, the Prime Minister candidate of Team Utsa, was beaten up by said supporters of Team Kartavya. In response, Samir lodged against Yash Sen and other members of his team. Feeling the weight of conscience, Yash Sen withdrew his candidature for the post of Prime Minister of Hindu College. Then came the Hindu Darbar, which was the first time after the unfortunate events that the contestants faced a larger audience publicly. स्थापना आज से 105 साल पहले 1920 में हुई थी। यह कोई आम छात्र निकाय नहीं है, यह वह ऐतिहासिक मंच है जिसने राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन कमीशन के विरोध में अपना सक्रिय भागीदारी निभाई थी और उसी परंपरा
सोमवार को यहाँ पर रही थी, मैंने यहाँ से कुछ वादे किए हैं, कुछ रुपए लेना रखे हैं, उसका रिजल्ट आपको देख लिया है। उसके बावजूद आप सबका प्यार है जिसने मुझे यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। मेरा इतना समझता है जो मुझे लग रहा है, उसकी कसम मैं आता हूँ। एक बात होता है, सरकार का निर्णय लेता होता। अरे मेरी बात नहीं, तो रहे हैं जो मुझे नहीं रही इसमें हमें लिए। आज नहीं मानूंगा, रात नहीं मानूंगा। काल के कमाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। साथियों, जो कुछ भी हुआ, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ इस चीज की। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस चीज का पार्ट नहीं था, पर उस टीम का पार्ट था जिसने ये करा। पर अब से मैं अपने आप को एक इंडिपेंडेंट घोषित करता आप सबके आगे हिंदू कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडिडेट बनी हूँ सीसी की। आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी रीजन के बेस पे या रिलीजन के बेस पे यहाँ पे वोटिंग करे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जाने कि एक रक्षिता बारिक एक लड़की है जो सीसी के लिए खड़ी है। आज आपको एक चीज यही बताना चाहूंगी कि नारी शक्ति जिंदाबाद, महिलाओं के लिए सम्मान जिंदाबाद। और मैं यहाँ पे एक वादा रखने आई हूँ कि हम अगर आते हैं आपके सपोर्ट से तो 33% रिजर्वेशन फॉर महिलाएं इन आवर पार्लियामेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि हम नारी के बेसिस पे वोट करें या जो डिजर्विंग है उनके बेसिस पे वोट करें। इसलिए हमने 33% महिला के सीट रिजर्व करी, और क्या हमें आश्वासन दिया जाएगा कि वो 33% महिला काबिल होगी? हर साल बहुत सारे promises किए जाते हैं about a lot of things. This is going to be changed, that is going to be changed. But if the candidates could share their plan of action and how actually are they going to bring change on the ground, that would be able to facilitate the voters with more information. कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो कैंडिडेट पोस्ट पे रहे हैं, उन्होंने साल के अंदर ये बोला है कि अच्छा था मैं आया थी और मैंने कोई काम नहीं किया उस स्टेज पे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करता है कि अगर उन्होंने कैंडिडेट पोस्ट पे पहले रहने का काम भी नहीं किया है तो अब वो क्या होप कर रहे हैं कि उन्हें क्यों रिकॉग्नाइज करें उस काम को? धन्यवाद। If you win, how will you make sure that the students who have not supported you or the ideology will still be genuinely represented? जो भी सरकार आएगी, आप अपने वादे पूरा करें या ना करें, आप तो चले जाएंगे। रहे तो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जाएंगे, उनके लिए आप कैसा अकाउंटेबिलिटी, आप नेता अकाउंटेबल कैसे हैं, इसका आप जवाब दें। क्या देखिए कि महिलाओं के बारे में बहुत बात की जाती है, किंतु जब हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, हिंदी पॉलिटिक्स या स्टूडेंट पॉलिटिक्स को देखते हैं, बहुत सारी वुमेन पार्टिसिपेशन है वुमेन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेफ एनवायरनमेंट कभी वो बना नहीं पाते। तो मेरा बस एक शायद सजेशन या एक क्वेश्चन रहेगा कि कैसे आप स्पेस बना पाएंगे महिलाओं के लिए, स्टूडेंट लाइक हिंदू कॉलेज की महिलाएं। इस बार आर्यन बैसोया इंडिपेंडेंट खड़ा है, तो आपको क्या लगता है उनके कितने चांसेस हैं? देखिए, आर्यन बैसोया इंडिपेंडेंट तो लड़ रहे हैं, बट उनका ग्राउंड लेवल का जो काम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि डेफिनेटली एक सीसी आर्यन बैसोया ही जीतेंगे। आर्यन बैसोया ने ग्राउंड वर्क करा है, वो फर्स्ट ईयर से काम कर रहे हैं, फर्स्ट डे से बच्चों के साथ लगे रहते हैं, इसलिए आर्यन बैसोया ही जीतेंगे। इस बार इलेक्शंस काफ़ी एक नैरोड वे में हुए हैं। लास्ट ईयर ऑफ कोर्स सीसी कैंडिडेट्स और पीएम कैंडिडेट्स थोड़े ज़्यादा थे, पर इस बार डेफिनेटली एक डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है कैंडिडेट्स के मुद्दों में। बट इस बार इलेक्शन ज़्यादा डिटेल लग रहे हैं, दो पार्टीज की तरफ से मैनिफेस्टोज बहुत डिटेल तरीके से आए हैं, कैंपेनिंग अलग अलग मुद्दों पर हुई है। लास्ट ईयर रीजनलिज्म को एक प्राइमेसी दी गई थी, इस बार मुद्दों को या कुछ और चीज़ों को प्राइमेसी दी गई है। सो डेफिनेटली इलेक्शन इस बार ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एटलीस्ट फ्रॉम अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि इस बार वुमेन कैंडिडेट जो है वो दिख रहा है कि मे बी सीसी के दोनों कैंडिडेट्स वुमेन बन सकती है, बिकॉज 50% ऑफ देम आर वुमेन। सो इस बार डेफिनेटली इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। दिस टाइम द पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड फ्रॉम भाई मेरे कहने पे मुझे वोट देना
या मेरे साइड के हो मुझे वोट देना, या ये पर्टिकुलर नाम है मुझे वोट देना, टू ये करवा रहे हैं हम इसलिए वोट देना, ये उन्होंने नहीं कराया था हम करने की सोच रहे हैं इसलिए हमें वोट देना, वो ये कह रहे हैं वो ये गलत कह रहे हैं, वो रील की राजनीति कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। मतलब इट इज़ मोर अबाउट एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस एंड देन स्टेटिंग योर पॉइंट्स कि तुम क्या करना चाह रहे हो, रादर देन सेइंग कि क्योंकि तुम मेरे साइड के हो इसलिए। मच ऑफ मोर ऑफ अ लॉजिकल टाइप ऑफ इलेक्शन आई सपोज। सेकेंडली एक नई चीज़ जो हिंदू कॉलेज के इलेक्शंस ने देखी वॉज आउट ऑफ कैंपस से अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स जो कि हुए कॉलेज के टाइम पे, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं थे और शायद हिंदू कॉलेज की पॉलिटिक्स में पहली बार हुए। सो आई फील sphere of politics in our college is shifting in every aspect, good or bad. And yeah, that is how it has shifted. रोज को भी बुला रहे, रोज को इस बार के इलेक्शंस के बारे में आपके आप तो अनअपोज जीत रहे हो, बट सीसी के इलेक्शंस के बारे में आपका क्या कहना है? जीत रहा हूँ, लेकिन मतलब भाई संघर्ष बहुत किया है, मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। 1 अगस्त क्या मतलब 31 तारीख से तो पूरी तरह फील्ड पर उतरे हुए थे। तो हाँ अनअपोज है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने मेहनत नहीं की। सीसी हमारे लड़ रहे हैं, टीम हमारी लड़ रही है, अभी भी सीसी हमारे कंटेस्ट कर रहे हैं। वार्ड नंबर 3 रक्षिता, वार्ड नंबर 4 रोज। पिछले साल आप भी इलेक्शंस के पार्ट थे, तो इस बार मैं इलेक्शन में था, तब्दील में 3 बार फीचर हुआ पिछले साल वाले में। पिछले साल एक अलग टाइप का जोश था, कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, जो इस साल पता नहीं क्या वो कैंडिडेट्स क्यों कम थे। इलेक्शन बाइपोलर जैसा हो गया, आखिर में यूनिपोलर ही हो गया वो आगे की सभी से जूनियर से बहुत मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कैंडिडेट जरूर निकालना अगले साल, कम से कम 4 कैंडिडेट होने चाहिए इलेक्शन में। और इस इलेक्शन में जितना रीजनलिज्म है वो मेरे सबसे टूट चुका है। आगे के इलेक्शन हिंदू को जो मैं ऊपर जो मेरा एम था इस इलेक्शन में आने का कि रीजनलिज्म या हो या क्षेत्रवाद हो, ऐसे कोई किसी भी विभाजन पर इलेक्शन ना हो, और ऐसा हो चुका है। इलेक्शन में रीजनलिज्म नहीं है इस बार, और मैं विश करूँगा कि आगे भी ऐसा ना हो। तो रोज आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग नर्वस। क्या लगता है आपको, आपके जीतने के चांसेस कितने हैं? डिपेंड्स ऑन गॉड। आज जो होगा हमारे किस्मत में होगा, नहीं भी होगा तो इससे बड़ा कुछ लिखा होगा, पक्का है ये तो। तो आर्यन भाई, अभी तक जितना वोटिंग चल रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आप जीत पाओगे? देखो मेरी मेहनत है पिछले 1 महीने की, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ वोटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, और लग रहा है कि मेजरली 90% वोट हमको ही जाएंगे। तो बस इतना ही है, देखते हैं और आने वाले टाइम में पता लगेगा, 1-2 घंटे में पता लग जाएगा क्या रिजल्ट है। बाकी लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली कि हम जीतेंगे। लास्ट ईयर के मैं पिछला इलेक्शन लड़ा था और काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग का इलेक्शन में कुछ भी जो सारी कुछ सकारात्मक रूप से हुआ था। इस बार थोड़ी बहुत चीज़ें हुई जो एडमिन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जिन लोगों ने मसल पावर मनी पावर का यूज़ किया उन्हें सजा दी गई एडमिन के द्वारा, और ये हिंदू कॉलेज के लोकतंत्र को स्थापित किया फिर से कि हिंदू कॉलेज में ऐसे लोग की कोई जगह नहीं है जो हिंदू कॉलेज के लोकतंत्र को ख़राब करते हों, और हिंदू कॉलेज के बच्चों का है जो इस लोकतंत्र को सेलिब्रेट करते हैं, जो चुनाव है हिंदू कॉलेज के प्रेमिसेस को सेलिब्रेट करते हैं और उसमें अपनी सूझबूझ से भागीदारता लेते हैं, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में, बिना किसी मनी पावर का, बिना किसी मसल पावर का। लक्ष्य भाई, ऐसे सेकंड ईयर स्टूडेंट, आपने फर्स्ट ईयर का भी इलेक्शन देखा था और इस बार का भी इलेक्शन आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हो कि लास्ट ईयर के इलेक्शंस और इस साल के इलेक्शंस के बारे में, और सीसी के कैंडिडेट्स के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि लास्ट ईयर का चुनाव जब हुआ था बहुत अच्छे से हुआ था, वो उसमें ऐसा इतना लड़ाइयाँ नहीं देखी थी। हाँ, लड़ाइयाँ हुई थी लेकिन कैंडिडेट पे प्रहार नहीं हुआ था। इस बार देखना पड़ा कि शायद
शर्मनाक हादसा हुआ, कैंडिडेट प्रहार हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत हुआ। जो भी हुआ, कैंडिडेट का साथ बैलेट पे नाम ही नहीं आया है। मैं मानता हूँ कि शायद लोकतंत्र के अंदर ऐसी चीज़ देखना थोड़ा सा गलत है। और आर्यन बेसोया को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ फॉर सीसी एंड मानस भारद्वाज को सीसी के सपोर्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी उनको वोट कीजिएगा। धन्यवाद। यार इस बार बताऊं तो इलेक्शंस में इतना माहौल नहीं है। लास्ट ईयर जब हम लोग थे, कम से कम भी आई गेस इस टाइम तक 1000-1200 वोट की पोलिंग हो चुकी थी, बट इस टाइम तक अभी तक यही को 200-300 वोट की पोलिंग हुई है। बिल्कुल माहौल नहीं है। रीज़न यही है, आप सबको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे उनका बैलेट रोल पे एक ही नाम आया है, समीर उपाध्याय का। ये का नाम ही नहीं आया है, जिसकी वजह से कोई मतलब एक्साइटमेंट भी नहीं है। सिर्फ सीसी के उस पर वोट पड़ रहे हैं, तो कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है। सो उम्मीद है कि अगले साल कुछ चेंजेस होंगे, कुछ बदलाव होंगे कि जो फियास्को इस बार हुआ वो आगे से रिपीट ना हो। I think last year election was more exciting because this time, as we see, there's no ballot for the Prime Minister, and it would have been nice thing if there was a ballot for that Nota or another candidate. Last year we had 6 candidates, so it was more exciting, more thrilling. There was climax and all. I was not really happy with the situation of this year's election. And about the CC candidates, we have I think 4 CC candidates, and all of them are good. I do not have a really good opinion about all of them, but I think I support Rakshita most of the time, so Rakshita is. In my opinion, last year's elections were far more democratic because, as she said earlier, there are no ballot paper for the PM candidate. And talking about the CC candidates, like one of the CC candidates is not promoting and doing their promotion because they are like, oh, I'm getting the threats and stuff. So I think the last year's election were far more democratic and they were like more, we can say, more thrilling and exciting for us. So you both are from first year, and so it your first time coming to a college election. So how do you feel, and what do you think about the CC candidates this year? Okay, so first of all, it's the first time giving any sort of vote, so it's very exciting. And so the atmosphere is very competitive, and we definitely liked how we got to give it EVMs and ballot paper. And yeah, we did vote for a few people, so but yeah, can't say that. Political science and ethics. Right. Same as a pol science student, I changed college for this very atmosphere. I did expect a lot of competition, but not violence, certainly. Knowing that one candidate was hit, so that is very violent and not really ethical, but still, it's very natural. The politics that we see today in our country just permeates into the college politics as well. I just hope that there would be peaceful, democratic process being followed everywhere. But yeah, and we hope that the people we vote for, they do a good job if they win. As for me, I think it is quite an unprecedented moment in Hindu history के 126 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कैंडिडेट अनअपोज्ड प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। सो आई थिंक दैट्स अ बिट हार्म टू द डेमोक्रेसी कि हमारे कोई लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं होगा। एंड अपोजिशन कैसा भी हो, लेकिन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द सेटअप ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, मतलब हार्म अगर होगा, बच्चों ने अगर कोई दिक्कतें पॉइंट आउट नहीं करी, अब एक ही कैंडिडेट है तो है, अब क्या कर सकते हैं। अब सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि अब बच्चों को सारी दिक्कतें पीएम को बतानी है और बच्चों को ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है। दे शुड बी देयर ओन स्टीवर्ड्स। सो लाइक दैट माइट बी अ सिल्वर लाइनिंग, बट लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। थैंक यू सो मच। करेंगे, उसके बाद आप किसी भी प्रकार का हो हल्ला कंटेस्ट पर नहीं करेंगे। अभी मैडम आपके सामने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, शांति से आप सुन करके कैंपस से जा सकते हैं। After the results are announced, कॉलेज कैंपस की ही खाली बात नहीं है, यूनिवर्सिटी कैंपस की बात नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी आपका प्रोसेशन किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो आपका कैंडिडेचर जो है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है या आपको जो पोजीशन आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कैंसिल हो सकती है। सो बी वेयर, आपकी अपनी टीम शायद ना समझे इस बात को, लेकिन आपकी ऑपोजिशन बहुत अच्छी तरह से समझती है, ठीक है। तो अब हम अनाउंस कर देते हैं अपना फॉर द प्राइम मिनिस्टर समीर कुमार उपाध्याय।
had to elect two. The highest vote the people who got the highest votes are Aryan. Aryan got 735. Participation in election or being indulged in politics just seems so bad in our college that people have like the people who are most vocal about EAS and MECA not happening and anything like that are the ones who are planning to take a holiday on the day of election. So yeah, you think students should be more participate more? See, being apolitical is not an option when you are living in a democracy, and our college represents that culture of our country कि भाई देख democracy है, तुम्हारे वोट्स काउंट करेंगे, but तुम्हारे वोट्स तब काउंट करेंगे when you vote for the right person for the right causes. You try to be apolitical. I don't know if I'm not so much up to date, or I do not want to indulge in something which is bad just because it is bad. You do not understand. It's your responsibility to not make it bad. So I think elections are a part of college life. You gotta be in it. Actively participate, come to vote, whatever is in your capacity, you align with someone, support them, you want to participate. You do not speak up, you be into the college का काम ही नहीं है ये भाई. So guys, who did you vote for? Neutrality.